السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، کچھ نادان لوگ کچھ علم سے دوری کی وجہ سے اور تاریخ سے دوری کی وجہ سے کربلا کا انکار کر رہے ہیں سرے سے کہ کربلا ہو ہی نہیں، اور امام حسین کربلا میں جب جا رہے تھے تو کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا، راستے میں کوفیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا۔ اتنے نادان لوگ ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سیدہ زینب امام حسین کی بہن واپسی میں یزید کے وہاں ٹھہری اور ان کی مہمان بنی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید نے اتنا کچھ کیا ہو اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا ہو، اور اس کے باوجود سیدہ زینب ان کی مہمان بن جائے؟ کون اتنا کرنے کے باوجود، اتنا ظلم سہنے کے بعد کون اپنے دشمن کا مہمان بنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بنتا۔ اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے، کہ جو ہے کربلا کا واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں، بالکل نفی کر دی۔ یزید کا دفاع کر رہے اور کہہ رہے اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ جو حکومت میں ہوتا ہے حکمران کی مجبوریاں ہوتی ہے۔ جب ان کو کہا کہ بھائی یزید اگر بے قصور تھا تو نے عبید اللہ بن زیاد کو کیوں معزول نہیں کیا، کیوں سزا نہیں دی؟ اور جتنے قاتلین حسین تھے ان سب کو سزا کیوں نہیں دی؟ ان کو کیوں معزول نہیں کیا، انہیں کیوں قتل نہیں کروایا؟ حکومت تو اسی کی تھی۔ تو پھر کہنے والا کہتا ہے وہ کہ بھائی حکمرانوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہے۔ کون سی مجبوریاں ہوتی ہے بھائی؟ جہاں اہل رسول کا اہل بیت آ جائے یا امام حسین آ جائے، وہاں کوئی مجبوریاں نہیں ہے۔ امام حسین سے محبت کرنا ہماری مجبوری ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہماری مجبوری ہے۔ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمارے دل میں ان کی اتنی زیادہ محبت، اتنی الفت، اتنا عشق ڈال دیا ہے کہ ہمارے سینے اہل بیت کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتے۔ اس دل میں علی المرتضیٰ بستے ہیں، اس دل کے اندر امام حسن بستے ہیں، اس دل میں امام حسین بستے ہیں، اس دل میں صدیق اکبر بستے ہیں، اس دل میں عمر فاروق بستے ہیں، اس دل میں عثمان غنی بستے ہیں، اس دل میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بستے ہیں۔ یہ سارے ہمارے اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، اور سرے سے کربلا کا انکار ہی کر دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے بھائی، 1400 سال سے لوگ کربلا کے واقعے کو یاد کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ اب بھائی یہ افسوس کی بات ہے، یزید کا دفاع کرنے میں اتنے آگے چلے گئے کہ واقعہ حرہ کا بھی انکار کر دیا کہ واقعہ حرہ کا واقعہ ہی کوئی نہیں ہوا اور کچھ نہیں ہوا۔ مدینہ میں یزید نے کوئی 3 دن کے لیے حلال نہیں کیا مدینہ منورہ کو، اور مدینہ اور مسجد نبوی میں کوئی گھوڑے نہیں بنوائے گئے اور کوئی وہاں گھوڑوں نے لید نہیں کی۔ افسوس کی بات ہے یار، یزید کا اتنا زیادہ دفاع کرنے لگ گئے آپ لوگ کہ امام حسین کی عظمت کو ہی بھول گئے، امام حسین کی بلندی کو ہی بھول گئے، امام حسین کے عروج کو ہی بھول گئے۔ افسوس کی بات ہے یار، قیامت کو تم نے، یزید نے تمہیں نہیں بچانا، امام حسین کے نانا نے بچانا ہے۔ اتنے آگے مت جاؤ کہ قیامت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ نہ دکھا سکو، حسین کے نانا کو منہ نہ دکھا سکو۔ یزید کا دفاع مت کرو، اللہ کو مانو۔ کیوں اس کا دفاع کر رہے ہو؟ کیوں اپنی آخرت و دنیا تباہ کر رہے ہو؟ کیوں یزیدی بن رہے ہو؟ یزیدی مت بنو، حسینی بنو، محمدی بنو۔ امام حسین سے محبت ہے تو امام حسین کے گیت گاؤ، امام حسین سے محبت ہے تو امام حسین کے قصے سناؤ، امام حسین سے محبت ہے، امام حسن سے محبت ہے تو اللہ کے نبی کی ان سے محبت بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے امام حسن اور حسین سے محبت کیا کرتے تھے، کیسے ان کے لاڈ و نخرے اٹھایا کرتے تھے، کیسے انہیں سینے سے لگایا کرتے تھے، کیسے ان کے ہونٹ مبارک چومے ہیں، کیسے امام حسن حسین کے گالوں کو چوما ہے، کیسے امام حسن حسین کی آنکھوں کو چوما ہے، کیسے امام حسن حسین کے ماتھوں کو چوما ہے، امام حسن حسین کے ہاتھوں کو چوما ہے، امام حسن حسین کے پاؤں کو چوما ہے، امام حسن حسین کو سینے سے لگایا ہے، امام حسن حسین کے سینے کو چوما ہے، اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے، اپنی سواری بنایا ہے، امام حسن حسین سوار بنے ہیں۔ تو کتنی ان کی زیادہ بلندی ہے، کتنا زیادہ عروج ہے، کتنا اللہ نے ان کو مقام عطا کیا۔ وہ نبی جو امام الانبیاء ہے، خاتم النبی ہے، محمد عربی ہے، وجہ کائنات ہے، جنت کی چابی والا ہے، مقام محمود والا ہے، اللہ کے جھنڈے اٹھانے والا ہے، حسن حسین کا نانا ہے، امت کے لیے رونے والا ہے، امت کی شفاعت کرنے والا ہے، امت کی بخشش کروانے والا ہے، دونوں جہاں کا سردار ہے، دونوں جہاں کا دولہ ہے، ہمارا آپ کا نبی ہے،
इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी शान पाकर हसन हुसैन के लिए जुम्मे का खुतबा छोड़ दिया, मिंबर छोड़ दिया। हसन हुसैन को देखा सामने से आ रहे हैं तो खुद चल के गए। सहाबा को नहीं कहा कि जाके लिया आओ हसन और हुसैन को, कह सकते थे, मस्जिद भरी पड़ी थी, नहीं कहा, बल्कि खुद ही उठे मिंबर से, खुद ही मिंबर को छोड़ा, खुतबा छोड़ा, किसी की परवाह नहीं की और जाके इमाम हसन और हुसैन को उठा के लाए। एक को सीधी तरह बिठाया, एक को उल्टी तरह बिठाया। भाई हम तो उसका दिफा करेंगे जिनका दिफा अल्लाह के नबी ने किया है, हम तो उसका दिफा करेंगे जिससे अल्लाह के नबी ने मोहब्बत करी है। इमाम हसन हुसैन को अल्लाह के नबी के बारे में नबी ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, कि मेरे नवासे हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है। ये सरदारी इबादत करने की वजह से नहीं मिली, सजदे में रहने की वजह से नहीं मिली, कुरान पढ़ने की वजह से नहीं मिली, ये बचपन में ही मिल गई थी। अल्लाह ने पहले ही कह दिया था कि हसन, अल्लाह के नबी ने पहले ही फरमा दिया था, अल्लाह के हुक्म से। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ अल्लाह के हुक्म से बोलता हूँ। अल्लाह मुझे बुलवाते हैं, मैं अपने हुक्म से कुछ नहीं बोलता, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, अल्लाह मुझे बुलवाते हैं। तो ये अल्लाह का हुक्म ही था कि अल्लाह हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है। इतनी बड़ी सरदारी पाई उन्होंने, इतना बुलंद मकाम पाया। और यजीद लोगों ने, यजीदी थे शिमर, जब भी तो शिमर ने बदबक नहीं किया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ये किया, इन बदबख्तों ने ये ख्याल भी नहीं किया कि ये किसकी कितनी बड़ी शान है, कितनी अजमत को। इमाम हुसैन ने खुद करबला में खुतबा दिया, सैयदा ज़ैनब ने खुतबा दिया। इमाम हुसैन का खुतबा सुना तो लोग रो पड़े, अहले ईमान रो पड़े। इमाम हुसैन ने कहा, मुझे क्यों तुम कत्ल करना चाहते हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या मैंने आज तक मेरी अजमत को तुम नहीं पहचानते क्या? मेरी शान को तुम नहीं पहचानते क्या? मेरी बुलंदी को तुम नहीं पहचानते क्या? मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने, मेरे बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि हुसैन जन्नत के नौजवानों का सरदार है। मैं वही हुसैन हूँ जिसको होठों में बोसे लिए, मैं वही हुसैन हूँ जिसके गालों के बोसे लिए, मैं वही हुसैन हूँ जिसके सीने को अल्लाह के नबी ने चूमा, मैं वही हुसैन हूँ जिस अपने पीछे कमरे में बिठा के झूला खिलाया, मैं वही हुसैन हूँ कि अपने हसन हुसैन को प्यार किया, मैं वही हुसैन हूँ जिसने आज तक एक नमाज नहीं छोड़ी, मैं वही हुसैन हूँ जिसने कुरान की पढ़ने की तलावत नहीं छोड़ी, मैं वो हुसैन हूँ जिसने कभी झूठ नहीं बोला, मैं वो हुसैन हूँ जिसने हराम का कभी एक लुकमा नहीं खाया, मैं वो हुसैन हूँ जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं वो हुसैन हूँ जिसने किसी को नाहक कत्ल नहीं किया और किसी को भी कत्ल नहीं किया, मैं वो हुसैन हूँ जिसने आज तक किसी को हाथ से तकलीफ नहीं दी, मैं वो हुसैन हूँ जिसने आज तक किसी को अपनी जबान के जरिए तकलीफ नहीं दी, मैं वो हुसैन हूँ जो अली का बेटा हूँ, मैं वो हुसैन हूँ जो शेर खुदा का बेटा हूँ, मैं वो हुसैन हूँ जो सैयदा फातिमा का बेटा हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हुसैन हूँ जो हसन का भाई हूँ, मैं वो हूँ जो सरकार दो आलम जो पूरी कायनात के सरदार है उनका मैं नवासा हूँ। तुम क्यों मेरी अजमत को भूल गए, क्यों मेरी शान को भूल गए, क्यों मेरी उरूज को भूल गए? तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, क्यों मुझे मारना चाहते हो, क्यों अपनी आखिरत बर्बाद करना चाहते हो? लेकिन बदबख्त थे, वो यजीद से इनाम लेना चाह रहे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तेरी ये बातें हमें फायदा नहीं देगी, हम तो तुझे कत्ल करेंगे, हम तुझे ज़िबा करेंगे। और आले रसूल का खून क्या इतना ज्यादा सस्ता हो गया था कि पानी की तरह बहा दिया गया? वो तो अल्लाह के नबी कितने प्यारे थे। जब हुसैन को शहीद किया गया होगा, हुसैन के गले पे छुरी फेरी गई होगी, तो आसमान भी रो रहा होगा, जमीन भी रो रही होगी, मशरिक भी रो रहा होगा, मगरिब भी रो रहा होगा, शुमाल भी रो रहा होगा, जुनूब भी रो रहा होगा, करबला की मट्टी भी रो रही होगी, करबला की फरिश्ते भी रो रहे होंगे, जिन्नात भी रो रहे होंगे। और कैसे बदबक लाइन लोग थे जिनके सीनों में दिल नहीं था, खिंजीर थे ये लोग, दिखने में इंसान नुमा थे लेकिन खिंजीर थे ये, बदबक लोग थे, जलील लोग थे। दुनिया खत इनकी तबाह हो गई। कहाँ गया यजीद? आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं। कहाँ गया उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद? आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं। कहाँ गया शिमल लाइन? कोई उसका नाम लेने वाला नहीं। कहाँ गया खौला बिन यजीद? कोई उसका नाम लेने वाला नहीं। और हुकूमत हुसैन की थी, हुकूमत हुसैन की है, हुकूमत हुसैन की रहेगी। अजमत पहले भी हुसैन की थी, आज भी हुसैन की है, आइंदा भी हुसैन रहेगी। कयामत के दिन हुसैन के नाने के हाथ में झंडा होगा, कयामत के दिन हुसैन कामयाब होगा, हुसैन कामयाब है। यजीद नाकाम था, नाकाम है, नाकाम होगा। शिमन नाकाम था, नाकाम है, नाकाम होगा। हमें चाहिए हम आले रसूल के झंडे के नीचे आ जाए, आले रसूल से मोहब्बत करे, उनसे मोहब्बत की बातें करे। अल्लाह की बारगाह में ये कबूल अमल है, कबूल अमल है। ये कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है उसका अमल कबूल है अल्लाह की बारगाह में। ऐसे ही कोई आले मोहम्मद का तस्करा करता है, मौला अली का तस्करा करता है, सैयदा फातिमा का तस्करा करता है, इमाम हसन हुसैन का तस्करा करता है, इमाम उल अंबिया का तस्करा करता है, अम्मा खतीजा का तस्करा करता है,
अम्मा आयशा का तस्करा करता है, सैयदा हफ्सा का तस्करा करता है, सैयदा ज़ैनब बिन्त जैश, सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा का तस्करा करता है, उम्महातुल मुमिनीन का तस्करा करता है, बनाते रसूल का तस्करा करता है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का जिक्र करता है, उनका जिक्र करता है, तस्करा करता है। अल्लाह की बारगाह में जैसे दुरूद शरीफ कबूल है, इनका जिक्र करना भी कबूल है। जैसे दुरूद शरीफ पकड़ने वाले के अल्लाह शाम को बढ़ा देता है और अल्लाह की रहमतें उतरती है उसके ऊपर, ऐसे ही जो करबला वालों का तस्करा करता है, जो आले मोहम्मद का तस्करा करता है, जो इमाम हसन हुसैन का तस्करा करता है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा करता है, उस पर भी अल्लाह की रहमत उतरती है, उसकी शान भी बुलंद हो जाती है इनका तस्करा करने की वजह से। आज तो हमें चाहिए हम यजीद का दिफा करके यजीदी ना बने। हम करबला को क्यों छुटला रहे, वाक़या हर्रा के वाक़ये को हम क्यों छुटला रहे कि उसका कोई कसूर नहीं था, वाक़या हर्रा में कुछ नहीं हुआ, लोगों की ऐसी बनाई बनी कहानी। अरे अल्लाह के बंदो, वाक़या हर्रा तो हदीसों के अंदर आया है, कोई तारीख में थोड़ी, हदीसों में भी आया है। अफसोस की बात है आपके अंदर ऐसी कम इल्मी कि आप मिंबर में बैठ के आपको पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आप ऐसे ही बोले जा रहे यजीद का दिफा कर रहे हैं और यजीद को बेकसूर ठहरा रहे हैं। यजीद को अफसोस की बात है, अफसोस की बात है आप ऐसे कर रहे हैं। और कितने लोग यजीद को नाउज़ बिल्लाह में रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। नहीं है, नहीं हमारे अमीर मोमिनीन, तुम्हें चाहिए, तुम्हें यजीद मुबारक हो भाई, यजीद को अच्छा बोलते हो, यजीद मुबारक, हमें इमाम हुसैन मुबारक। हम कहते हैं अल्लाह जिसको यजीद पसंद है उसका शर क़यामत के दिन बरोज़ क़यामत यजीद के साथ करना। हमें इमाम हुसैन पसंद है, आले रसूल पसंद है, आले मोहम्मद पसंद है, सहाबा किराम पसंद है, सिद्दीक़ अकबर पसंद है, उमर फारूक पसंद है, उस्मान गनी पसंद है। अल्लाह हमारा शर इनके साथ फरमाना। मौला अली पसंद है, अम्मा आयशा पसंद है, अम्मा खतीजा पसंद है, सैयदा ज़ैनब पसंद है, सैयदा उम्मे कुलसूम पसंद है, सैयदा रुकैया पसंद है, सैयदा फातिमा पसंद है, और हमें इमाम हुसैन पसंद है, इमाम हसन पसंद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पसंद है, इमाम मोहम्मद बाकिर पसंद है, इमाम जाफर सादिक पसंद है, इमाम अली रजा पसंद है, हज़रत इमाम मूसा कासिम पसंद है, हज़रत इमाम तकी पसंद है, इमाम नकी पसंद है, इमाम हसन अस्करी पसंद है, इमाम मेहदी पसंद है। ये सब अल्लाह के प्यारे थे और हमें प्यारे है। जिनसे मोहब्बत करेगा वो कामयाब होगा, इनकी मोहब्बत ही हमें दुनिया आखिरत में फायदा देगी। और क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में हशर उसी के साथ होगा। तो हमें आले रसूल मुबारक, तुम्हें यजीद मुबारक, तुम यजीद का दिफा करते रहो, क़यामत में तुम्हारा हशर उसी के साथ हो जाएगा। हम इमाम हुसैन का तस्करा करते रहेंगे। सिर्फ हम इमाम हुसैन का तस्करा मुहर्रम के साथ खास नहीं है, इमाम हुसैन का तस्करा सिर्फ 10 दिन के साथ खास नहीं है, इमाम हुसैन मुहर्रम के मुताज नहीं है। इमाम हुसैन का तस्करा पूरे साल करना है, पूरी जिंदगी करना है। मौला अली का तस्करा पूरी जिंदगी करना है, हर वक्त करना है, हर वक्त उनका तस्करा करना है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अली मोमिन तुझसे मोहब्बत करेगा, मुनाफिक तुझसे बुग़्ज़ रखेगा। मुनाफिक के दिल में कभी मोहब्बत आ नहीं सकती तेरी, और मोमिन का दिल तेरी मोहब्बत से कभी खाली हो नहीं सकता। ये अलामत है अली, अली से मोहब्बत, हुब्बे अली, ये ईमान की अलामत है। और निफाक अली, अली का निफाक ये बुग़्ज़ की अलामत है, मुनाफ़िक़त की अलामत है। ये सहाबा कराम के जब हमें पता नहीं चलता था लश्कर में कौन मुनाफिक है, जगह में कौन मुनाफिक है, तो अल्लाह का तस्करा तो पहले ही सहाबा कर रहे होते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो पहले भी शरीफ पड़े होते थे। तो हम कैसे पहचानते थे मुनाफिक इनको? हम अली का तस्करा करते थे, हमें पता लग जाता है ये मुनाफिक है। जिसके चेहरे मौला अली के तस्करे से खिल जाते थे, खुश हो जाया करते थे अली का तस्करा सुनकर, तो हम समझ जाते थे ये मोमिन है। और जिसके दिल चेहरे मुरझाया करते थे और अजीब से हो जाते थे, चेहरे पे लानत बरसती थी इनके चेहरों पर अली का तस्करा सुनने से, और चेहरे मुंह बन जाते थे, हम समझ जाते थे मुनाफिक है। तो भाई हम आले बैत का तस्करा नहीं छोड़ सकते, आले रसूल का तस्करा नहीं छोड़ सकते। हम इनसे मोहब्बत का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, मेरे सहाबा की मिसाल सितारों की तरह है। हम सहाबा को भी नहीं छोड़ सकते, हम आले मोहम्मद को भी नहीं छोड़ सकते। सहाबा भी हमारे, आले मोहम्मद भी हमारे, हम किसी को नहीं छोड़ सकते। दोनों हमारे बाजू हैं, दोनों हमारी आंखें हैं, दोनों हमारे कान हैं, हम नहीं छोड़ सकते। दोनों हमारा दिल है, हम नहीं छोड़ सकते। हम कैसे उनको छोड़ दे? किसी एक को भी छोड़ के नाकाम थोड़ी होना है। जो सहाबा की गुस्ताखी कर रहा है वो भी समझ ले अल्लाह की बारगाह में उसकी बड़ी पकड़ है। और जो आले रसूल की गुस्ताखी करता है, मौला अली की गुस्ताखी करता है, सैयदा आयशा की गुस्ताखी करता है, सैयदा खतीजा की गुस्ताखी करता है, अम्मा फातिमा की गुस्ताखी करता है, या इमाम हसन हुसैन की गुस्ताखी करता है, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गुस्ताखी करता है, वो भी नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। जिल्लत दुनिया में भी उसकी जिल्लत मुकद्दर है, आखिरत में उसके लिए जिल्लत मुकद्दर है। अल्लाह पाक से दुआ करे कि अल्लाह पाक हमें आले मोहम्मद का चाहने वाला बनाए,
आले से मोहब्बत करने वाला बनाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।